Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. I am Sudeep Shah, astronomologist and वास्तु कंसल्टेंट एंड योर फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगे। तो ये वीडियो जो है वो मैं बहुत हिंदी और इंग्लिश में दूंगा। फर्स्ट पार्ट विल बी इन इंग्लिश एंड द सेकेंड पार्ट हिंदी में रहेंगे। So before I begin this video, I'd request you to subscribe to this channel, hit the bell icon and select all notifications so that you get notified about my upcoming videos. Okay, so let us begin our today's discussion regarding the possible movements of Nifty 50 as per AstroNumero. See, on 31st of August, Moon will be in Capricorn. Now, if your Moon sign or name sign is Gemini, Libra and Aquarius, then you are requested to be careful on this day, that is on 31st of August 20. On this day you may see a negative opening or a negative trend in the first half, but the closing will be positive. On 1st of September, Moon will be in Aquarius. So on 1st, 2nd and 3rd, Moon will be in Aquarius. So if your Moon sign and name sign is Cancer, Scorpio and Pisces, then you are requested to be extra cautious on 1st, 2nd and 3rd of September. Moon is changing sign on 3rd of September at 14 hours and then it will transit to Pisces. Okay, so 1st of September, see on actually on 31st of August, okay, there are a few events that is going to happen. First one is the AGR verdict, yeah, and the second one is that the government is going to release the data on GDP. So you can expect a downtrend in the first half of 1st of September, but the second half will be positive. 2nd September, highly positive. 3rd September, you may see a W-shaped graph, okay, W-shaped graph, but overall the trend will be positive, okay. And on 4th September, Moon will be in Pisces, and if your name sign is if your Moon and name sign is Aries, Leo and Sagittarius, then you are requested to be extra cautious on this day and the trend of the market will be sideways. See, for the next week, 11,450 to 11,550 will be a strong support zone for the Nifty, and the upper range, and it may go up to 11,840. Sorry, the first target will be 11,721, 11,840, and the final target will be 11,915. Now if it breaks all the target, if it achieves all the targets, then the next target will be 12,049. Okay, so this is the expected structure for the Nifty 50 for the next week, for the week of 31st of August to 4th of September 20 as per एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। अब यही बातें अब हम हिंदी में करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सितंबर का महीना बुलिश रहेगा। अनलॉक 4 का भी अनाउंसमेंट हो गया है, मूवीज़ थिएटर्स सब खुलेंगे। 7 सितंबर से मेट्रो रेल भी चालू होंगे। तो 31 अगस्त इस दिन मून जो कैप्रिकॉर्न में रहेंगे, और यदि आपका चंद्र राशि और नाम राशि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है, तो इस दिन आप सावधानी बरतिएगा। इस दिन जो है वो आपको शायद ओपनिंग आपको हो सकता है आपको नेगेटिव में मिले, या फिर फर्स्ट हाफ आपको नेगेटिव में मिलेगा, लेकिन क्लोजिंग जो है वो आपको पॉजिटिव ही होगा। 1st, 2nd और 3rd सितंबर को मून जो है एक्वेरियस में रहेंगे, और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि 31 अगस्त को जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट में AGR का वर्डिक्ट आने वाला है, और गवर्नमेंट जो है वो GDP का डेटा रिलीज़ करने जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट में आपको दिख सकता है 1 सितंबर को।
तो 1 सेकेंड ऑफ सितंबर और 3 सितंबर दोपहर 2:15 तक मून जो है वो एक्वेरियस में रहेंगे। और यदि आपका नाम राशि या चंद्र राशि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस है तो इस समय आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो 1 सितंबर जो है फर्स्ट हाफ आपको शायद नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जीडीपी डेटा आने वाला है। तो आप तो समझ सकते हैं कि लॉकडाउन था और जीडीपी का डेटा तो का क्या इम्पैक्ट होगा इस पर। यूएसए का जो टोटल डेप्ट है उसका जीडीपी से भी बढ़ चुका है। दुनिया भर का इकोनॉमीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। बट ये डिप्रेशन का सिनारियो है जैसे मैंने बताया था। और डिप्रेशन में तो बोथ स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमी जो है वो 180 डिग्रीज अपार्ट रहेंगे। तो 1 सितंबर आपको फर्स्ट हाफ में नेगेटिव देखने को मिलेगा, सेकेंड हाफ इज़ पॉजिटिव। 2 सितंबर सुपर पॉजिटिव। 3 सितंबर में भी एक आपको शायद डब्ल्यू शेप ग्राफ देखने को मिलेगा कि कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। बट ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा इस दिन का भी पॉजिटिव रहने का उम्मीद है। और 4 सितंबर जो है चंद्रमा जो है पाइसिस में रहेंगे। और यदि आपका चंद्र राशि और नाम का राशि जो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस है, तो इस दिन आपको ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। और इस दिन का जो ट्रेंड होगा वो मेरे हिसाब से साइडवेज रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का जो है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है 11,450 से 11,550 जो है वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? अब ऊपर में देखिए 11,721, 11,840 और 11,915। अगर ये तीनों अचीव हो जाता है तो इसके बाद जो है सीधा 12,000 क्रॉस कर जाएगा और 12,049 जो है इसका टारगेट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेडिक्शन अच्छा लगेगा और ये आपको फ़ायदा दिलाएगा आपका आने वाला हफ्ते के लिए। तो अगर आपको ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, यदि आप उन लोगों को भी काम आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं मिड वीक में एक रिलीज़ करने जा रहा हूँ तो वो उसमें जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। और वो जो है वो इंग्लिश में ही होगा बिकॉज इट इज़ फॉर द इंटरनेशनल व्यूअर्स। उन लोगों ने बहुत ही मुझे डिमांड किया, बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए बना दीजिए। तो ये आने वाला वीडियो उनके लिए है। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड लिव लाइफ किंग साइज। नमस्कार।